ओके देखो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग बनाएंगे एक वर्चुअल मशीन। देखो टिपिकल कस्टम, दो ऑप्शन आ रहे हैं, कस्टम चूज करेंगे। हार्डवेयर वर्जन, यहाँ पे हार्डवेयर वर्जन होता है, डिफरेंट डिफरेंट आपके हार्डवेयर वर्जन है आपके, ठीक है। नेक्स्ट करेंगे। अब यहाँ पे देखो चूज करेंगे हम लोग, आई विल इंस्टॉल द ऑपरेटिंग सिस्टम लेटर, और यहाँ पे चूज करेंगे आइसो VMware फर्स्ट। ओके ESX, ESX वर्जन 6 चूज करेंगे। सर आपका स्क्रीन शेयर ओके नहीं आ रहा है? देन लोकेशन देंगे हम यहाँ पे, हेलो सर। हेलो, यस सर। लोकेशन देंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे हमारे पास ESXi1 है, फर्स्ट ESXi इंस्टॉल करेंगे। So this is the ओके location D ESXi6 and then ESX01. ओके Now assign the processor. Processor we need 2 processor and core. 1 core is needed. Then is 2 processor you have to minimum need. ओके सर। Memory assign, memory you minimum need 4 GB. It is recommended you have to ओके assign as much as memory. Okay, so I ओके सर। need here 8 GB. I assign 8 GB here because it goes ओके fast processing of the installation. ओके Now network type. Network type, first is bridge networking, second one is NAT, third one is host only, and fourth one is do not use the network resources. So first one is used to connect to my external network, or if you have internal switch, if you have internal सर external आपका switch, स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा सर। शेयर नहीं हो रहा। वर्चुअल से अभी अभी वर्चुअल से कहा है लैग है थोड़ा। Okay. यू आर गोइंग टू यूज नैट सर। अब आ रहा है? सर यू आर गोइंग टू यूज नैट। स्क्रीन आ रहा है? स्क्रीन, कैन यू सी माय स्क्रीन? नाउ यस सर। Okay, so different option is here. First one is bridge networking, this one. ओके It is used to connect your network to internet or external network, ओके this one. ओके So in this connection you need a proper connections, just like Ethernet cable is attached to your PC. Okay, and ओके सर। this Ethernet cable is also connect to your internet. ओके Okay, so this one is used for physical system, is used ओके to physical system, just like you connect to the switch or you connect to any hub or you have to connect any external Wi-Fi connections. So this one is a wired connections, this use in wired ओके connections network, and this one is internal network connections. It uses NAT mode. NAT mode means you have to communicate your guest operating system and
your internal VMs using this one. Okay. Your internal VMs are connection using NAT via the DHCP server. So in the VMware ये बैन workstation, कनेक्शन नहीं रहता ना सर इसमें? किसमें? इसमें बैन कनेक्ट नहीं होता ना सर नेट में? हाँ, इसमें WAN नहीं होता कनेक्ट। ये क्या है, ये आपके जो इंटरनल नेटवर्क है ना, उसको जोड़ने के लिए बेसिकली जितनी भी VMs है वो आपस में कम्युनिकेट करती है। बट इसमें एक और चीज है कि इसमें NAT मोड में नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन सर्विस यूज होती है, जिससे कि आप इंटरनल जो इंटरनेट है, एक्सटर्नल इंटरनेट है, उसको भी आप NAT मोड के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे एक DHCP सर्वर चलता है जो NAT मोड में काम करता है। इसमें दो तरह के हमारे पास होते हैं। एक होता है NAT1, एक होता है NAT8। The both are used for connecting to the internet via the translation process, or your internal VMs are connecting using this one. These are the adapters, NAT1 and NAT8 adapters, and Okay. NAT0 is used for bridge networking. It is bridge mode, this one. Okay. This one, bridge mode is NAT0 mode. The same is, if you choose NAT0, you use the bridge networking. Either you use the NAT1 or NAT8 for NAT. Okay. सर आपका माइक्रोफोन थोड़ा चेक कर दीजिए सर, आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है बीच बीच में। वही ब्रेक हो रहा है। अब देखना ठीक आ रही है आवाज? नो सर, नहीं आ रही वॉइस प्रॉब्लम? सर अभी अभी सुनाई दिया सर, वॉइस प्रॉब्लम बोल के बताया ना। आप सेंटेंस कुछ बोल रहे हैं ना सर, बीच में आधे में रुक जा रहा है। एक्चुअली आई एम नॉट गेटिंग प्रॉपर्ली। लगता है वायर इसकी ब्रेक हो गई है। आई थिंक माइक्रोफोन वायर इज ब्रेक। ओके, आप सुन रहा है? अभी ठीक है सर। तो either we use the NAT1 or NAT8 for NAT, this one. Okay. And this is host only. Host only means Only VMs can communicate. your guest operating system and VMs are connecting. Okay. This one. This is not including your external network connected. This one. Okay. Only the VMs and your guest machine. Your host machine and guest machine is connecting. This one. Host and guest Okay. are connecting, but the external network is not connected, just like internet. If you choose this one. Okay, sir. Now here I am choosing NAT. Next one is IO controller. This is a hard disk controller. Hello. Hello. Hello, sir. Hello. वॉइस ब्रेक हो रही है क्या? सर ये नेटवर्क टाइप है ना, वो स्क्रीन शेयर भी वहां रुक गया सर। I'll check the internet speed actually. इंटरनेट स्पीड तो ठीक है मेरी।
सर यहाँ पे स्पीड बराबर है सर. सर कैन यू बी 1 मिनट सर प्लीज, ऑफिस से कॉल आया. ओके. हेलो सर, गुड आफ्टरनून सर. सर చెప్పండి సార్. అదే అలా ఉంచేసేయండి సార్, నేను ఆఫీస్ స్టార్ట్ అయిన రోజు తీసుకుంటాను సార్. అది వైఫై అడాప్టర్ కూడా ఇచ్చాను సార్, మొన్న పంపించినప్పుడు వైఫై పని చేయట్లేదు అన్నారు కదా. లేదు సార్, ఆయన అసలు వాళ్ళ సిగ్నల్ రేంజ్ లో లేదు కదా సార్. సిగ్నల్ మీ దగ్గరికి వస్తే ఏ అడాప్టర్ అయినా వర్క్ అవుతుంది సార్, సిగ్నల్ రావట్లేదు కదా సార్. జస్ట్ అడాప్టర్ అన్న ప్రాబ్లం ఏముంది అని చెప్పి ఇది కూడా పంపించాను సార్. యాక్చువల్లీ మీ అడాప్టర్ మీకు పంపించింది వర్క్ అవుతుంది సార్. మాధవ్, యా మాధవ్ గారిది లేదు సార్, కుమార్ది ఉందండి. అవును సార్. ఓకే, ఆటోడెస్క్ ఫ్యూజన్ సార్. షూర్ అండి, మాట్లాడతాను సార్, అడుగుతాను. ఓకే ఓకే సార్, లోకల్ గా సేవ్ చేసుకుంటే పర్ఫెక్ట్ గానే ఉంటుంది కదా సార్, రావట్లేదా సార్? ఓకే సరే. ఓకే ఓకే, డైరెక్ట్ గా సర్వర్ నుంచి ఆ పర్టికులర్ ఫోల్డర్ కాపీ చేసుకుంటే అలా రావట్లేదా సార్? అదే అదేలేండి, డైరెక్ట్ గా ఇంట్లో నెట్ ఉంటేనే పర్ఫెక్ట్ గా అవుతుంది సార్. రవి గారు చేస్తున్నారండి. లేదు సార్, మీ దగ్గర నెట్ స్పీడ్ ఉండాలి సార్, అయినా సరే షేర్ చేసినా సరే. సరే షూర్ సార్, కనుక్కుందాం. నేను అడుగుతాను సార్, ఒకసారి కనుక్కొని చెప్తాను సార్. ఓకే సార్, బాయ్ సార్. हेलो सर. हेलो. हाँ सर, यहाँ पे स्पीड ठीक है सर, ठीक ही चल रहा है एक्चुअली. अच्छा, नहीं मेरी भी ठीक ही चल रही है स्पीड. वो एक्चुअल में माइक आपका ना, वॉइस ब्रेक हो जा रहा है बीच बीच में, ये हो जा रहा है सर. वो एक्चुअल में क्या है ना, मेरी जो इसकी वायर है ना, ये बीच में से ना थोड़ी ब्रेक हो गई है इसकी. ओके. फोन की जो ये वायर है ना, हाँ सर. माइक्रोफोन की जो वायर है ना, वो बीच में थोड़ी सी कटी हुई नजर आ रही है मुझे, थोड़ी थोड़ी. तो हो सकता है इस वजह से वॉइस ब्रेक हो रही हो. हाँ अभी भी थोड़ा ब्रेक हो रहा है सर, बीच बीच ब्रेक में. हो रहा है ना, तो ये वायर ही कट गई लग रहा है. तो नहीं तो मोबाइल कॉल कर रहा हूँ सर मैं, वीडियो है तो यहाँ देख लेता हूँ, मोबाइल कॉल से वी कैन लिसन सर. जस्ट आई नीड टू कनेक्ट अनदर वायर. जो देखता हूँ मैं कोई वायर पड़ी हो, क्योंकि मोबाइल होल्ड करना फिर अभी सुनाई दे प्रॉब्लम रहा होगी. है अभी सुनाई दे रहा है. सर. हाँ हाँ वो भी है. हाँ ये अभी थोड़ी सुनाई सी दे ना रहा है सर कट अभी. गई है बीच से. यहाँ देखो, ये वायर है ना मेरी, ये देखो, दिख रहे हो, ये थोड़ा यहाँ से कट गई है. हाँ सर दिख रहा है सर. यहाँ से ये कट गई थोड़ी सी, ओके यहाँ ओके. से ब्रेक हो गई ना, ये ब्रेक हो गई है, तो थोड़ा सा इससे थोड़ा डिस्टरबेंस हो रहा है. ओके, अभी ठीक ही सुनाई दे रहा है सर, अब ठीक अब दिख जो रहा है. बात कर रहा था. ये मैंने अब थोड़ा सीधा करा है ना, इस वायर अभी को थोड़ा पकड़ के रखा है हाथ से. ओके इसमें लगता है ना सेलो टेप चिपकाना पड़ेगा. ओके. वो थोड़ा वायर ये खिंच गया है ना. हाँ सर. अब सही दिख रहा है, अब सही सुनाई दे रहा है ना. हाँ सर अभी सही देना है. हाँ, तो मैं यहाँ पे बता रहा था अभी ठीक है आपको. सर. ये देखो, हार्ड डिस्क कंट्रोलर टाइप है ये. मतलब किस टाइप की हार्ड ड्राइव आप यूज कर रहे हो, दैट इज द हार्ड डिस्क कंट्रोलर टाइप. ओके. Okay. So this one is bus logic says we have the IDE drive here. IDE is old one, you can use in your desktop PC. Okay. So IDE is outdated nowadays, we cannot use this one. Second one is LSI logic. LSI logic is also the same type just like IDE, but this one is
used for parallel connections. Okay. So this one is also used for parallel connection, and this one is also used for parallel connection. So both are Okay. parallel connection, and this one is this one. This one is used serial connection. Serial. Oh, So this is used okay. for serial SCSI hard drive. Okay. Okay. So the performance is upgraded if you are using the serial SCSI. उसमें हम कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हैं सर? Sorry. उसमें हम कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हैं अपनी मर्जी से? Yeah, either you use the LSI logic or LSI logic SAS. So these are the drive used in the server. Okay. So this is a serial SCSI. This Okay. one. This one is performing the great performance, great speed. If you are using this one, LSI logic SAS. Okay. This is for parallel connection, parallel port, and this is also parallel port. This is a serial port. Serial. Okay. So serial have the maximum speed. The serial port using either the SATA or either the SCSI. Okay. Okay. So you can choose either this one or this one, but the high performance is this one. Okay. So I choose this one. I use the SCSI. The ID is SCSI SATA. I use SCSI. SCSI is used for server. Okay. ID is parallel. SCSI is serial. SATA is also serial. So both are serial. Okay. You choose any one, but it is recommended to choose SCSI. SCSI is used in the servers. Okay. If you choose here LSI logic SAS, you choose SCSI. Okay. Okay. So I choose SCSI. SCSI used for servers. Okay. Now you have to create a new virtual hard drive. Virtual hard drive Okay. is just like a file on the disk. So virtual disk Okay. is just like a file. Okay. And this file is located on your hard drive. So it will create the VMware virtual disk. It will create the VMware virtual disk file, and you can move your data from one location to another location by using moving or copying this virtual disk file. Okay. So I need to create the virtual disk here. Now you specify the capacity of the hard drive. So in your VMware, if you use the hard drive, you use one or more hard drives for storing the data. So I use 500 GB drive, and you choose the store the virtual disk as a single file. This one is if you use this one, allocate the disk space now. पूरा डिस्क पे एक ही में हो जाता है. It will cut your space 500 GB on your drive. Okay. So do not recommended to use this one. I will not recommend to use this one. This is create a fixed 500 GB drive disk. ये क्या करेगा, आपके हार्ड डिस्क को खाली कर देगा, 500 GB काट लेगा ये, अगर आपने ये चूज कर लिया, एलोकेट कर देगा ये स्पेस क्रिएट करेगा 500 GB का. ठीक है ना. आपकी जो ड्राइव है, जैसे आपकी जो भी ड्राइव है, अगर उसमें इतना स्पेस नहीं है तो यहाँ पे जो है प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि इतना स्पेस एलोकेट करा दोगे तो आप फिर फाइल कहाँ रख पाओगे. तो यूज दिस वन.
this one option. Do not use this one. Okay, sir. So it is dynamically growing your hard drive. If you choose this one, not this one. Okay. It will create a disk file .vmdk extension. VMDK extension file is your hard drive, virtual hard drive file. Okay, sir. Now this is your summary: 8 GB memory, two processors, okay, NAT adapter, Yeah. USB adapter, display. Okay, so finish this one. Now choose the CD DVD here, and you have to use your ESXi image. This one. This is my VMware 6.7 installer. Start the machine. Now this is the menu option is inserted here. If you do not press any enter, it will come up to the default booting process. Okay. Either you press the enter or you have to wait for it started. In this process, the VM kernel is loaded into the main memory and all the modules, including VM kernel, is loaded. So it's loading some of the modules. You see Yes, here, sir. some of the modules is loaded after booting the VMware kernel, VM kernel. Okay. So some of the modules files is loaded here. Yes, sir. So it's loaded temporarily in the memory area, and after that it installed to the hard drive. Okay. Now it is loaded into the memory. Okay, now it shows the VMware 6.7 installation. VMware 6.7.0 ESXi installation is installed on most systems, but only the systems on VMware's compatibility guide are supported. So you can check all the compatibility resources with this link, vmware.com/resources/compatibility. So now we are going here. vmware.com/resources/compatibility. /compatibility. This is a complete guide which hardware the VMware supported or not. So this one here, Okay. I'm here. Now I'm choose my product just like 6.7. This is update 2. Okay, I'm using update. So I'll choose some of the, either you choose motherboard, rack server, rack mount, tower server, or blade server.
Okay, so you can choose this one, just like if you use rack mount. Okay, rack mount. Now here choose the company. I use the Dell. Okay, Okay. this is the some of the features here. That's it's you can check either of the some of the servers that use some of the features. I'm choose all features, and here are some of the memory that I am using. I am choosing the socket, number of socket I am using, just like I am using 2 sockets. Maximum cores per socket is I'm using just 8, so it will be shows my CPU versions. So Intel Xeon, different the Intel version is here. So you just choose your matching processor, just like I'm choosing just like that. I'm choosing this one. Okay. Okay, sir. And these are the compatibility mode or fault tolerance mode, if my processor is supported or not. So these are some of the features on my CPU is exist. Okay. So I'm choosing all one. I choosing the results. So it will show the information for my product guide. So this one shows some of the no matching search criteria. So you have to select some of the machines with the correct series. Then it will show Okay. some result. Okay. Okay, sir. If Dell is not using some of the series, so it will not showing here. So you choose the correct Okay. one. So this is the compatibility guide that's provide some of the features your CPU is have or not, which hardware is supported or not. Okay. Okay. So you have choose the correct one, and then it will show some model number, CPU related informations, and it also provide your product guides. Okay, for VMware. Okay, sir. Okay, sir. Okay, so this one is this. So now we have choose either the escape or continue. So I use the continue to enter. So press enter here. Now choose the end user license agreement. So this is the mandatory options. So you have to select F11. Press F11 to accept the license agreement. Now it's scanning my hardware. All hardware is scanning, and now you getting the results of your hard drive. Okay, so it will shows to choose or install or upgrade your existing VMware partitions. अगर देखो यहाँ पे क्या होता है कि अगर आपके पास पहले से इसमें हार्ड ड्राइव में VMware डला हुआ है और आप उसे अपग्रेड करना चाहते हो, ओके, ठीक है, तो यहाँ पे वो दिखा देगा आपको कि आपका VMS वर्जन कौन सा चल रहा है. ठीक है, अभी यहाँ पे तो देखो आपको क्या दिखा रहा है, ये VMware वर्चुअल दिखा रहा है, यहाँ पे एस दिखा रहा है. यस सर. और ये इस तरह से दिखा रहा है. अगर पहले से उसमें कुछ होता तो उसकी यहाँ पे इंफॉर्मेशन दिखा देता. ठीक है, कि इसमें ये वाला पार्टीशन डला है, VMFS ऑलरेडी एग्जिस्ट, या इस तरह से आपको बताता. ठीक है ना. और इसमें स्टार लग के आ जाता है यहाँ पे, दैट इज कंटेन्स ए VMFS पार्टीशंस.
फिर आपको बोलता है कि अपग्रेड करना है या नहीं करना है। बट अब अभी क्या है कि अभी आपके पास क्या है, एम्प्टी हार्ड ड्राइव है, तो कुछ नहीं करना है आपको। यहाँ पे देखो, अगर आप डिटेल देखना चाहते हो F1 से डिटेल देख सकते हो उसकी पूरी। तो F1 जैसे ही आप करोगे तो उससे रिलेटेड यहाँ इन्फॉर्मेशन आपको दिख जाएगी कि भाई आप क्या चूज कर रहे हो और उसके अंदर क्या क्या चीज यूज कर रहे हो। तो अब ये डायरेक्ट आपको बोल रहा है कि VMware वर्कस्टेशन प्रो आप यूज कर रहे हो, ठीक है, और उसके रिलेटेड आपको दिखा देगा यहाँ पे कंटेंट चीजें। तो अभी तो ये ओके आपको नहीं दिखा रहा है, तो यहाँ पे आपको F5 प्रेस करना है, तो उसके अकॉर्डिंग ये चीजें आपको दिखाएगा, ठीक है। ओके तो अब एग्जिस्टिंग हार्ड ड्राइव में इंस्टॉल करना है आपको, ठीक है। यस सर अब यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे तो एंटर प्रेस करेंगे। ओके बाकी इसमें डिफॉल्ट ऑप्शन चलते हैं जितने भी हैं, जैसे आप यहाँ कीबोर्ड है तो डिफॉल्ट चलेगा, एंटर करेंगे। अब यहाँ पे रूट पासवर्ड होता है, रूट पासवर्ड सुपरवाइजर पासवर्ड होता है, एडमिन पासवर्ड। तो यहाँ पे हम एडमिन पासवर्ड डालते हैं, तो मैं ए कैपिटल में लिख रहा हूँ, DMIN एडमिन @123। ये कैपिटल है, बाकी सब स्मॉल हैं। ओके, नाउ माय पासवर्ड इज मैच, प्रेस द एंटर टू कंटिन्यू। अभी कह रहा है इंस्टॉलर इज कॉन्फ़िगर टू इंस्टॉल EXXI 6.7 ऑन दिस ड्राइव। तो वो नीचे ड्राइव दिखा रहा है VMHBA, ठीक है ना। हाँ सर और यहाँ पे कह रहा है डिस्क विल बी रीपार्टीशन, तो ये ऑटो पार्टीशन करेगा, F11 प्रेस करेंगे। ओके हो गया सर Now it's reboot the server. So you choose the रिमूव इंस्टॉलेशन remove installation media and you press the enter to reboot. अगर डिस्क लगेगी तो वो बाहर निकल जाएगी ऑटोमेटिक। ओके सर अभी रिबूट हो रहा है।
ओके, देखो अब Yes. यहाँ पे होता क्या है बेसिकली, जब ये स्टार्ट होता है तो यहाँ पे क्या करता है, ये डायरेक्टली एक आईपी एड्रेस डीएससीपी से एक्सेस कर लेता है। ये देखो, ओके। दिस इज द आईपी एड्रेस हाँ सर, 192.168.72.129 वाया डीएससीपी। अब देखो यहाँ पे हम जाएंगे एडिट वर्चुअल नेटवर्क एडिटर। देखो यहाँ मैंने कहा था आइदर यू यूज द VMNet 1 और 8 बोला था। तो अभी आप Yes, देखिए sir. कौन सा एडेप्टर यूज कर रहा है, ये 192.168.72.0 सबनेट। It is using Okay. a DHCP server 7.0 subnet. Yes, sir. So here we see here 72.129. So it using VMNet 8 adapter. It is using VMNet 8 adapter, this one. Okay. So now I am choosing the manually IP address. Okay. So this one, administrator privilege required to modify the configuration. So I change it. So here you see 3 adapter 018 VMNet 0 is bridge. मैंने बताया था VMNet 0 bridge होता है। हाँ सर। Bridge is connecting your LAN. ये केबल के लिए Yes, sir. होता है, केबल नेटवर्क के लिए LAN केबल आप अटैच करोगे इससे, ठीक है। ये दोनों आपके वर्चुअल एडेप्टर होते हैं। ये दोनों कहाँ पे होते हैं, यहाँ पे होते हैं। ncpa.cpl. Here is your VMNet 1 and VMNet 8. ये दोनों अडेप्टर यहाँ पे होते हैं। I'm using VMNet 8.1, so it is also use this one. 192.172.1 is a gateway address. Yes, sir. Okay, so this is your gateway. Okay, so now your VMware is providing the IP address of this gateway in the range of 72 series. Yes, Okay, sir. now it is using a DHCP server 72.254 and this is using a Win server 72.2 Okay. automatically. So here we specify the subnet here. So either you use to provide a DHCP, just like I use 2 subnet, 192.168.2.0 subnet. I'm using आपका host IP address range you are using, sir? आपका host mission का IP address range में यूज कर रखा है सर आपने? नहीं अभी नहीं किया। 192.168.2 नेटवर्क में है क्या सर आप अभी? नहीं वो host डिफरेंट, mission. वो डिफरेंट है। मैं जैसे एक एग्जांपल आपको बता रहा हूँ कि आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो उसको। ठीक है सर। ये आपने चेंज किया। अब यहाँ पे ये देखो, इसको एक बार रीस्टार्ट करोगे आप। It will be restarted. Okay.
आपने अपने लैपटॉप में क्या क्या इंस्टॉल कर लिया? सॉरी सर, अपना आपने अपने लैपटॉप पे ESX हाँ से लोड करके वो VMs बनाया सर मैंने थोड़ा। अच्छा अच्छा, कितनी एक्स डाली है? हाँ 6.5 किया सर इंस्टॉल। ओके, कितनी वीएम बनाई है? 4-5 बनाया सर, जस्ट फॉर प्रैक्टिस सर। अच्छा ये अच्छा। लैब्स मैंने रियल टाइम में नहीं कर पा रहा, जो प्रैक्टिस करेंगे टाइम है ना बोल के लोड किया हम्म था। हम्म 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 नाउ देखो, आईपी एड्रेस हैज बीन चेंज। यस ये सर। देखो, आईपी एड्रेस चेंज हो गया, देखो 2 सीरीज का हो गया। हाँ सर। ओके, और आपका जो VMNet एडेप्टर है, ये देखो, it is providing your gateway address 2.1 यस सर। is okay. So now I'm entering to this VM using direct console. So I press the F2 button. Two option is here, F2 or F12. F12 is shut down, okay, ओके and F2 F2 is customizing. So I press the F2. After pressing the F2, I need to authenticate it. So I use my admin account password. This one is setting. So root का जो पासवर्ड मैंने सेट किया था उससे ही लॉगिन होगा यहाँ पे, ओके। ठीक है। ये देखो लॉगिन हो गया। अब यहाँ पे देखो, मैं इसे अब कॉन्फ़िगर करूंगा अंदर, देखो। तो ये देखो ठीक है सर। लॉकडाउन मोड तो इनेबल नहीं है, देखो अब इस पे कर्सर ले जाओगे तो नहीं है। ये यस्टरडे आप बताया था ना, हाँ वो हाँ हाँ VM V सेंटर से ही हम हाँ, ये वी कर सकते सेंटर हैं, से लॉक ही कर इसको सकते मैनेज कर पाओगे आप। अभी देखो हैं। हाँ कॉन्फ़िगर पासवर्ड में जैसे आओगे, तो दिस इज प्रोवाइडिंग योर ओल्ड पासवर्ड और न्यू पासवर्ड। तो ओल्ड पासवर्ड ठीक है से आप नए सर। पासवर्ड चेंज कर सकते हो, दिस वन, ओके। ओके सर। So I press the escape. Next one is configure the management network. So management network is स्टैटिक। identify my DHCP server. So I press enter one and I choose स्टैटिक my ओके network सर। adapter here. So I am using VMNIC0, that is my Ethernet adapter, and now it is ओके connected form. Okay, ओके सर। so this one. So my Ethernet 0 MAC address is this one. Connection state connected, used by the vSwitch 0. So it will provide you the information, the connecting switch, which switch I am connecting. I am connecting the standard switch vSwitch 0. V0 ओके। Okay, so now press enter. So you press D to going for the detail. Okay, now you press the escape. Next one is VLAN information. If you are using a VLAN connections, means ओके you are using a standard switch, and just like Cisco switch you are using, and you create some of the VLAN for different departments, just like HR, IT, sales. Okay, so ओके सर। I am providing my VLAN address here. So which VLAN I have to connect? So native VLAN is VLAN 1. ओके Native, I using the native VLAN. Native VLAN ओके supposed to provide all traffic. So if your switch is going to connect to another switches, the all of the VLAN traffic is goes through the trunk port, and यस सर। all your the VLANs are encapsulated and going from one location to another location. So my VLAN traffic is going from 1 to 4094, maximum VLAN is supported. So it's supported 1 to 4094, that is 4095. ओके Okay, so which VLAN traffic I need to provide this ESX site to connect? Okay, so if you provide
if you provide here 1 means VLAN 1 is using this one. Okay. Okay. So this is optional field. If you don't want to provide, you choose blank. Means no VLAN is configured on your network. Okay. 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 So this one is like that one. Okay. Now IPv4 configurations. अब But देखो if I had IPv, multiple VLANs in my organization, I can connect to only one, right? At a time. yeah, Okay. IPv4 configuration में अभी डायनेमिक यूज कर रहे हैं. तो डायनेमिक में ये देखो आपका default gateway is 2.2 is automatically Okay. set up. If you want to static IP address, you use this one like that. Okay. Okay. Yeah, got So it, sir. you press this one to, this is converting your DHCP to static form. Okay. It is recommended to use the static, not the dynamic. Okay. Okay. This is your IPv6 address. So IPv6 address, you use the, if you use static, you provide here static IP. Okay. If it is dynamic. So static IP is address is very difficult to apply here Okay. because it is a 128-bit address. Okay. Okay. So you have to use the DHCP v6 provide the IP address, or Dynamic. it is Okay. dynamically using this one. So if there are any DHCP server providing you, it will automatically providing here the dynamic IP. Okay, sir. Okay. So this is the default option is dynamic. So it will be created automatically this one. This is a private address. IPv6 private address is start of FE80. This is the link local address, private address. Okay. Next one is DNS configuration. DNS server is the address of the AD server. If you have an AD server, you have also provide the DNS server. If your DNS server is differ for your AD server, you have to provide your correct DNS server here. Okay. So if you are using the external network DNS server, you provide also your public DNS address, just like 8.8.8.8.8. Okay. Okay. So I'm using 2.2 is my VMnet 8 adapter address. Okay. My VMnet 8 adapter address is my gateway, this one. So this one is 2.1. So I also using this one is 2.1. Okay. Now you choose the alternate address. So I use 8.8.8.8. Hostname. Hostname is the name of the ESXi server. So you have to mention the name here. ESXi01. Okay. Now press enter. Custom DNS. You have to provide your domain name here. Just like your domain name is cisco.com. So you provide the domain name here. Okay. So this will create the FQDN ESXi01.cisco.com. Okay. Suffixes, my sir. Yeah. Okay. Now we press the escape button. It will be showing a confirm changes. So we press the Y button. Okay, now it is confirming. Now this one is restart your network management. Okay. So next one is testing your network. So I'm testing my network.
2.1 गेटवे फेल हो जा रहा है क्यों सर? 2.1 गेटवे फेल इसलिए हो जा रहा है, ये फायरवॉल की वजह से। उधर फायरवॉल लगा होगा ना, उसको पिंग नहीं कर पा रहा है ये। हाँ सर। नो प्रॉब्लम, ये जस्ट टेस्टिंग के लिए। अगर आपकी सारी चीजें ठीक है तो इट विल बी ओके, इट्स ओके है सर, ना। नो प्रॉब्लम। तो ये तो आपके टेस्टिंग के लिए सर। हाँ सर। It is factory mode, network restore option. It is used for reset your factory mode. अगर आप नेटवर्क सेटिंग्स वापस से चाहते हो कि वैसी हो जाए जैसे हमने पहले यूज की थी, तो दैट इज द रीस्टोर मोड, फैक्ट्री रीसेट मोड। तो फैक्ट्री रीसेट मोड में आपकी ऑटोमेटिकली जो सेटिंग्स है वो रिमूव हो जाएगी और जो डिफॉल्ट सेटिंग है वो आ जाएगी। ओके, इनिशियल चेन में चले जाएगा सर। हाँ, जो अगर मैं अभी configuration एंटर प्रेस करता हूँ तो रीसेट हो जाएगा ये। ओके ओके नाउ दो ऑप्शन ये नीचे जो आ रहे हैं, स्टैंडर्ड वी स्विच और रिस्टोर वीडीएस, ये तब चलेंगे जब वी सेंटर यूज होगा। ठीक ओके है, तो वो आप तब वहां से कर सकते हो। इसके बाद एस्केप प्रेस करेंगे एंड नेक्स्ट वन इज कीबोर्ड सेटिंग। ये तो डिफॉल्ट ही होती है और कोई भी लैंग्वेज चूज कर सकते हो। तो ये तो मैंडेटरी नहीं है, आप चूज कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद देखो ट्रबल शूटिंग ऑप्शंस में आता है कि ESXi की कुछ वेरियस जो सर्विसेज हैं वो आप इनेबल कर सकते हो, जैसे कि ESXi शेल मोड। ठीक है, ये क्या है? ESXi शेल मोड जो आपका होता है ना, आपका ये क्या करेगा, आपका CLI जो CLI वाला चीज है वो इनेबल कर देगा शेल मोड, कमांड लाइन शेल। ये SSH सिक्योरिटी के लिए होता है। SSH जो होता है वो जस्ट लाइक टेलनेट बट इज सिक्योर टेलनेट टेलनेट। से एक्सेस कर सकते। हाँ, ओके but SSH is a secure telnet. So you need to change after you have to install your vCenter. This will be also you can change from there. ये आप ESXi जो है आपका ग्राफिकल से भी आप चेंज कर सकते हो इन चीजों को। मॉडिफाई द DCUI आइडल टाइम आउट। डायरेक्ट कंसोल मोड है, अगर आप काम करते करते बीच में इसको छोड़ देते हो, ठीक है, तो ये ऑटोमेटिकली लॉग आउट हो जाता है। सो सिक्योरिटी पर्पज से जो है ये इस तरह से होता है। तो इसका डिफॉल्ट टाइम यहाँ पे देखो 10 मिनट है, और इसको आप बढ़ा सकते हो और कम भी कर सकते हो। वो आपके डिपेंड करता है कि आपकी सिक्योरिटी किस टाइप की चाहते हो। ठीक है, मैक्सिमम जो वैल्यू होती है 1440 मिनट होती है। ठीक है, ओके और अगर टाइम आउट को हटाना ही है तो 0 आप कर सकते हो। ओके सर। ठीक है, तो ये सेटिंग होती है टाइम आउट की। रिस्टार्ट मैनेजमेंट एजेंट, ये आपका तब आएगा जब आप अपने मैनेजमेंट एजेंट्स को, अभी देखो कोई एजेंट अभी इंस्टॉल नहीं है, ये एजेंट तब इंस्टॉल होते हैं जब आप vCenter सर्वर से कनेक्ट करते हो। तो vSphere क्लाइंट जब मैनेजमेंट vCenter एजेंट्स सर्वर, बोले तो क्लाइंट, ओके, वेब कंसोल भी मैनेज एक क्लाइंट ही होता है सर, हाँ तो एजेंट ही वो, होता है सर। हाँ तो वो कंसोल जब एक्सेस होता है तब उसको ये रिफ्रेश करने के लिए, रिस्टार्ट करने के लिए। ठीक है सर। ये लॉग देखने के लिए, अब ये डिफरेंट लॉग है, जैसे sys log, 1 is sys log, second VM kernel, 3 is config, 4 is management agent, 5th is vCenter server, 6 is VMware ESXi observation log. So different type of log is here. You enter one, this is your general log. System logs, these are the system logs. Every transaction log is here. कुछ भी आप सिस्टम पे कोई भी प्रोसेस चल रही है, ठीक है, ओके वो सारी यहाँ रिकॉर्ड होती रहती है। एक एक सेकंड की चीज यहाँ रिकॉर्ड होती है। अगर कोई भी चेंजेस आप कर रहे हो, कुछ भी आप एग्जीक्यूट कर रहे हो, या कोई बैकग्राउंड में कोई भी चीजें चल रही हैं, ठीक है, कभी रीस्टार्ट कर रहे हो, कभी कुछ कर रहे हो, तो सारे लॉग बन रहे हैं।
Okay, sir. So it is total log. This is a system log yours. Okay. So this one, you press the space bar. This one Okay, it will for go. one page, second page, third page, fourth page. So in this one, many of the log is here. Last, this is the last page. Last, Okay. I am unlocking the ESXi conf. Okay. Okay. So every Okay. bit of information is here. Okay, sir. Okay. You press the Q button. Okay. Now you use the VM kernel. You press the 2 button. This is a VM kernel के अंदर जो भी चल रहा है, जो भी मेमोरी एड्रेस, देखो ये सब मेमोरी एड्रेस है. तो आप देख रहे हो ना बीच बीच में कि Yes, sir. VM कर्नल किस मेमोरी एड्रेस को यूज कर रहा है. ये देख लो, ये देखो, ये सब मेमोरी हाँ, एड्रेस. ये देखो, ये सब मेमोरी एड्रेसेस है. अभी हम नहीं जान पाएंगे कि भैया ये मेमोरी एड्रेस से कौन सा क्या हो रहा है. ये सब एनालाइज जो अगर आप कराना चाहते हो तो VMware सपोर्ट वाले बता सकते हैं कि भाई आपके इसमें ये प्रॉब्लम हो सकता है और आप ये VM कर्नल में ये चल रहा है. अभी हम तो इतने इस लेवल पे नहीं जा रहे हैं. ठीक है. अभी तो यहाँ पे देखो, ठीक है. सिर्फ आप देख रहे हो इसको, जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन पर्पज ओनली. Yes, sir. जो इसकी सेटिंग्स है यहाँ पे, ये देखो, नंबर ऑफ सेटिंग्स इज हियर. जो भी इसके VM कर्नल के अंदर चल रहा है वो सब यहाँ पे दिखता है. जैसे पावर सप्लाई फेलियर हो गया, ठीक है, तो वो भी दिखाई देगा आपको. हमने ब्रिज मोड से कोई और चेंज किया तो वो भी दिखाई देगा. हार्डवेयर को इसने रिसोर्सेज को कभी लिया है, दिया है, कुछ भी है, तो सब ये यहाँ पे सारी ये मेमोरी प्रोसेसिंग होती रहती है. ये Okay. सब मेमोरी मैनेजमेंट हो गया, पावर मैनेजमेंट हो गया, ये सब इसके काम है. ये देखो, स्टार्टिंग द सर्विस SLPD, एक्टिवेटिंग जंप स्टार्ट प्लगइन, जंप स्टार्ट प्लगइन इज एक्टिवेटेड, एवरीथिंग इज हियर. जो कुछ Yes, भी sir. इसके अंदर हो रहा है सब कुछ दिख रहा है. ये देखो, daemon started, different services called the daemon in the Linux. So this is the daemon started, vmsys log d, vmtool lsd is deactivated. Okay, so these are the some of the services Okay. that the VM kernel using. तो ये सारी चीजें इसके अंदर है. तो इसको ज्यादा डीप में अभी जाने की जरूरत नहीं है आपको, कि आपको कोई नहीं पूछेगा कि ये ACPI इसका मीनिंग क्या है. अब Okay. इसके अंदर की कोई एंट्री उठा के नहीं पूछेगा आपसे कि ये बताओ. नहीं, ये तो इसके अंदर जो चल रहा है. ठीक है, सर. ठीक है ना. ये तो बहुत ही ज्यादा, जब ट्रबल शूटिंग के लिए आप जब किसी लॉग भेजना चाहते हो तब ये आप लॉग उठा के भेज सकते हो. Okay. ठीक है. तो रेस्क्यू, तो ये सारी चीजें आप मैनेजमेंट एजेंट में कोई प्रॉब्लम है उसके लॉग देखना चाहते हो तो ये उसके लिए है. Okay. कब क्या क्या हुआ, तो ये सारी चीजें आपको दिखेंगी यहाँ पे. vCenter से रिलेटेड लॉग देखना है तो उसके लिए ये है. अभी vCenter स्टार्ट नहीं हुआ, देखो फिर भी कितने लॉग बन गए. ठीक है. तो दिस Okay, इज sir. यूजिंग फॉर द लॉग देखने के लिए है ये सपोर्ट इंफॉर्मेशन. सपोर्ट इंफॉर्मेशन में आपको ये दिखा रहा है कि आपका सीरियल नंबर क्या है, इवेल्युएशन लाइसेंस है, कौन सा लाइसेंस है. पता चला आप सपोर्ट वाले को फोन पे फोन किए जा रहे हैं और लाइसेंस इवेल्युएशन लेके बैठे हैं. Okay. तो वो पूछेगा कि लाइसेंस क्या है आपका, तो आप Okay. बताओगे इवेल्युएशन है, तो वो बोलेगा भाई क्यों परेशान कर रहे हो. Okay. पहले लाइसेंस तो लो. Okay. सपोर्ट तो तभी मिलेगा जब लाइसेंस लोगे.
तो खाली पीले में फोन कर रहे हो आप, परेशान कर रहे हो उनको। ठीक है ना। यस सर। So this is SSL thumbprint. The secured shell algorithm is here. This is a digital signature. So this one is your secured hash key values. This is the thumbprint of the SSL certificate. SSL DSC key fingerprint. So this have the RSC key here. This one. ये सिक्योरिटी के लिए आपकी चीज है, क्योंकि मैंने कल आपको बताया कोड था मॉडिफाई कि करने के लिए। या यस सर। अब ये जो होता है ना आपके ये सब क्या है, ये डिजिटल फॉर्म में आपका डाला गया है इसके अंदर। कोई भी आप इसको चेंज नहीं कर सकते, कोई मॉडिफाई नहीं कर सकते, प्रोटेक्टेड है सब कुछ। तो VMware सपोर्ट वाले पूछेंगे तो आपको ये भेजना पड़ेगा कि भैया ये आपको मांगेंगे, वो वेरीफाई करेंगे कि कोई गलत चीज तो नहीं कर रहा है। ठीक है ना। ये पूरे सिस्टम को रीसेट करने के लिए लास्ट ऑप्शन, इसको कभी यूज मत करना। इसमें अगर कुछ VM बना के रखे तो भी चले जाएगा सर, सब कुछ उठ जाएगा? ये सब कुछ उड़ा देगा। ठीक है सर। ये सारे जो पैरामीटर्स हैं वो सब हटा देगा, रिमूव कर देगा, और वर्चुअल मशीन अनरजिस्टर्ड हो जाएगी आपकी, सब कुछ हटा देगा। सो इट्स नॉट रिकमेंडेड टू यूज दिस वन। ठीक है सर। ओके। अगर प्रोडक्शन में है तो इसको कभी मत कर देना रीसेट, नहीं तो जॉब ही जाएगी और कुछ नहीं होगा। ओके। ठीक है, एस्केप करेंगे। तो मोस्ट ऑफ द ऑप्शंस हमने जो डायरेक्ट कंसोल के थ्रू वो देख लिए यहाँ पे। अब इसको देखो एक्सेस करना है तो कैसे करेंगे, देखो अब इसके लिए देखो आपको तो एक ब्राउजर चाहिए, तो आप चाहे होस्ट का ब्राउजर भी यूज कर सकते हैं इसका। तो यहाँ पे HTTP and then provides the IP address of my ESXi server। 2.2 था ना, कितना था? 128 देखते हैं 2.128 कुछ है सर। 2.128 ओके। जब फर्स्ट टाइम आप करोगे तो दिस इज शोइंग द वार्निंग, ओके, because we are using the ESXi using SSL channel, so this provides some error. So now go to advanced and proceed. Okay, so it will showing HTTP यूज कर रहा है इसलिए आ रहा सर ये। हाँ, HTTPS यूज कर रहा सर, वो HTTP है ना। ये देखो HTTPS जो है ना, यही यूज कर रहे हैं हम तो। एस से तो HTTP से तो एक्सेस ही नहीं होगा इसको। देखो एस ही चल रहा है, देखो ओके। अगर ये करेंगे तो आएगा ही नहीं। आएगा नहीं, ये ऑटोमेटिक आपको ले जाएगा उस पे, एस पे ही ले जाएगा। अच्छा ओके सर। वो ले गया, ऑटोमेटिक ले गया। फिर आपको यहाँ यूजर नेम डालना है, यूजर नेम इज रूट, देन लॉगिन इट। ये देखो हेल्प अस टू इम्प्रूव VMware होस्ट क्लाइंट। अब देखो क्या है कि इसमें ऑलरेडी क्या देखो, ये जो ब्राउजर बेस्ड है ये आपका कौन सा है, ये वेब क्लाइंट है आपका, ब्राउजर बेस ही चल रहा है। यस सर। ये जस्ट एक वार्निंग दे रहा है आपको, ठीक है, ज्वाइन द VMware इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम, इस तरह से करके बोल रहा है। ओके कर दो इसको। ये देखो होस्ट आपको यहाँ पे एक्सेस हो गया, देखो देखो ये कह रहा है गेट द vCenter सर्वर। तो vCenter सर्वर यहाँ से आप जो है क्लिक करोगे तो पहुंच जाओगे आप कहाँ पे, वेबसाइट पे। ये देखो VMware वेबसाइट। ठीक है, ये देखो डाउनलोड करवाएगा, ये देखो ठीक है।
अरे कहाँ चले गए, दिस वन। तो ये है। इसके बाद देखो यहाँ पे आ रहा है, देखो इसके हार्डवेयर आ रहे हैं इन्फॉर्मेशन। हार्डवेयर VMware देखो आ रहा है लिखा हुआ, मॉडल नंबर। अभी CPU दिखा रहा है आपको, कौन सा CPU यूज कर रहे हैं। ये देखो सर जो मैंने इंफॉर्मेशन दी थी, मेमोरी कितनी है, ये इसकी हार्डवेयर को दिखा रहा है। ये देखो 2 लॉजिकल प्रोसेसर यूज कर रहे हैं, प्रोसेसर का टाइप दिखा रहा है, सॉकेट दिखा रहा है, कोर पर सॉकेट दिखा रहा है, हाइपर थ्रेडिंग नो दिखा रहा है, मेमोरी 8 GB यूज कर रहे हैं, परसिस्टेंट मेमोरी 0। ये भी आगे बताऊंगा क्या होती है। ठीक है, स्टोरेज आप जो यूज कर रहे हैं, डेटा स्टोर में मैंने 500 GB दिया था, तो ये देखो यहाँ पे आपका दिखा रहा है ये इतना। बाकी जो आता आपका इसमें क्या होता है, इस बूट पार्टीशन बनता है इसमें, एक सिस्टम पार्टीशन, तो वो स्पेस कुछ वहां चला जाता है। ठीक है, और बाकी जो है ये डेटा स्टोर VMFS पार्टीशन में चला जाता है स्पेस इसका। ये तो ये डेटा स्टोर है आपका, उसकी कैपेसिटी दिखा रहा है कितनी है। डेटा स्टोर को ब्राउज करोगे तो ये इसके अंदर अभी कुछ नहीं है। ये देखो इसका फाइल सिस्टम दिखा रहा है ये। ठीक है, और अभी इसके अंदर कुछ नहीं है, खाली पड़ा है ये। सर ठीक है, ये देखो इंक्रीज कैपेसिटी, रिफ्रेश, ब्राउज, डेटा स्टोर ब्राउजर, अभी कुछ नहीं है इसके अंदर। देखो ये ब्लैंक फाइल पड़ी होती है, कुछ नहीं। अब आप इसके अंदर यह है कुछ भी रख सकते हो। देखो जैसे अपलोड यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है, तो जैसे कि आप यहाँ पे मान के चलते हैं ये विंडोज 7 की CD है, ये आप रख लीजिए इसके अंदर। ये देखो ये फाइल ऐड हो जाएगी। यहाँ पे एक डायरेक्टरी बना देते हैं, देखो इसका नाम रख देते हैं ISO images। इसके अंदर रख देंगे इसको हम। दिख ही नहीं रहा फोल्डर, ये वाला डायरेक्ट मूव करा देते हैं। मूव टू, इसके अंदर बन गया जैसा है। इसके अंदर आया ये गलत बन गया, ये इसके अंदर नहीं बनाना चाहिए था मुझे, इधर बनाना था। ये देखो, ठीक है, तो इस तरह से आप इसको यूज कर सकते हो। ठीक है, अच्छा तो ये देखो आपके डेटा स्टोर में देखो जो भी यहाँ पे एक्टिविटी हो रही है, टास्क नीचे आ रहे हैं देखो बन के। ये देखो मूव डेटा स्टोर, देखो ये आ रहा है। देखो जो भी टास्क आप यहाँ करोगे नीचे देखो, मेक ए डायरेक्टरी, जो जो आप काम करोगे देखो वो सारा आएगा। ठीक है, गोइंग टू द होस्ट। अब सारा काम आप यहाँ पे कर रहे हो। देखो अब यहाँ पे जो जो हमने इनेबल किया था, ये देखो वार्निंग आ रहा है कि ये SXI शेल इज इनेबल ऑन दिस होस्ट, यू शुड बी डिसेबल अनलेस द नेसेसरी फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस। ये देखो सर्विसेज में जाओगे, यहाँ पे देखो डिसेबल करने के लिए ऑप्शन आ गया, अब यहीं से डिसेबल कर दूंगा। ये देखो ये SXI करंट में देखो अभी लाइसेंस 60 डेज का ये चल रहा है। ठीक है, तो ये आपको सारी चीजें दिखाता है यहाँ पर। ये देखो यहाँ पे CPU कितना यूज हो रहा है, 3%, मेमोरी कितनी यूज हो रही है, 14%।
स्टोरेज कितना यूज हो रहा है, स्टोरेज 0. ये सारी चीजें दिखाता है आपको। ओके. और इसका नीचे ग्राफ भी बनेगा, परफॉर्मेंस ग्राफ, दिस वन। ठीक है सर. ठीक है, अब इसमें देखो जो मैनेजमेंट नेटवर्क है आपका, नेटवर्क में देखो वीएम नेटवर्क, ये देखो ये आपका मैनेजमेंट नेटवर्क है, इसमें वी स्विच आपको दिख रहा है। अभी देखो ये डायग्राम देखो आप, ये डायग्राम में आपको देखो अभी आपको बताया गया है, देखो ये आपका फिजिकल लैन कार्ड लगा हुआ है। ओके, हाँ सर. this one your physical LAN card, this one, and this is your V switch. V switch is connecting. अभी कोई VM अभी यहाँ पे नहीं चल रही, नहीं तो यहाँ पे VM दिखाता है आपको। ओके. जब VM बनाऊंगा तब आपको और दिखाऊंगा इसको कैसे कैसे चल रहा है। अभी तो यहाँ सिर्फ मैनेजमेंट नेटवर्क एक पोर्ट यहाँ पे है, जस्ट दिस वन। अब इसी मैनेजमेंट नेटवर्क से सारे कनेक्ट हो जाएंगे, ये अलग अलग VMs यहाँ दिखेंगे आपको अभी आगे। तो ये V स्विच इसके अंदर बना हुआ है, देखो ये V स्विच 0। ओके. ठीक है, कोई वर्चुअल मशीन यहाँ बनाओगे तो यहाँ पे आएगी। ठीक है, यस सर. यहाँ पे जैसे कि आप कोई वर्चुअल मशीन क्रिएट करना चाहते हो तो क्लिक कर दोगे न्यू वर्चुअल मशीन। ठीक है, अब यहाँ पे देखो डिप्लॉय वर्चुअल मशीन फ्रॉम OVF, ये OVF फाइल होनी चाहिए तब आप इसको डिप्लॉय कर सकते। ओके. अब क्रिएट एनी, अब हम करेंगे फर्स्ट ऑप्शन, ये होता है OVF के लिए। ठीक है, और ये एग्जिस्टिंग मशीन अगर कोई रजिस्टर करानी है उसके लिए होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन चूज करेंगे। ये कब होता है, थर्ड वन कब होता है सर? ये अगर कोई एग्जिस्टिंग मशीन बनी हुई है आपकी और वो इस ESXi पे रजिस्टर नहीं है, किस तरह से वो डिस्कनेक्ट हो गई। ठीक है, तो उसके लिए होता है ये। ठीक है, अभी हम यहाँ फर्स्ट ले रहे हैं ऑप्शन। अब यहाँ पे आपको यूनिक नेम ऑफ द मशीन और OS, तो यहाँ कोई भी आप जैसे आपने लिख दिया XP SP2। ठीक है, कंपैटिबिलिटी, ये हार्डवेयर वर्जन पूछेगा किस हार्डवेयर वर्जन में आपको बनानी है। ठीक है, तो अभी 6.7 आ रहा है लेटेस्ट, लेकिन आप पुरानी में भी बना सकते हो। ये देखो ओके. देखो VMware वर्कस्टेशन 12 मेरा चल रहा है, तो आप इसमें भी बना सकते हो। तो VMware वर्कस्टेशन 12 से भी इसको मैनेज कर सकते हो। तो मैं इसको देखो 12 से बना रहा हूँ। ठीक है, अब देखो सेलेक्ट द OS फैमिली, अब यहाँ पे चूज करोगे विंडोज। ठीक है, और विंडोज का वर्जन चूज करोगे, तो हमारे पास XP है, ये देखो XP कहाँ गया, ये रहा XP। ठीक है, अच्छा अब ये कह रहा है स्टोरेज, तो डेटा स्टोर जो है उसी के अंदर ये VM जो है इंस्टॉल होगी। तो डेटा स्टोर 1 अभी आपके यहाँ पे बना हुआ है बाय डिफॉल्ट। इसके बाद देखो यहाँ पे वर्चुअल हार्डवेयर क्या क्या इसको हार्डवेयर देना है, तो ये डिफॉल्ट इसमें कह रहा है कि 256 MB रिकमेंडेड है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसको दे देता हूँ 1 GB दे देता हूँ। ठीक है, ये रिजर्वेशन के लिए होता है कि फिक्स आप कितनी फिक्स करना चाहते हैं। ठीक है, रिजर्व ऑल गेस्ट मेमोरी और लॉक्ड मतलब इससे ज्यादा यूज ना करें। ओके. ठीक है, डायनेमिकली यूज ना करें किसी की और की उठा के, वो फिक्स हो जाए, उस पर ज्यादा ना ये कंजम्पशन बढ़े, क्योंकि ऐसा है ना VM कंजम्पशन करना स्टार्ट कर देती है कभी कभी, तो वो लॉक कर सकते हैं उसके लिए होता है। ओके सर. ये लिमिट देखो अनलिमिटेड आ रहा है इसमें, अभी ये अनलिमिटेड यूज कर सकता है। ठीक है, ये हॉट प्लग होता है कि भाई आप चलती मशीन में भी आप इसको चेंजेस कर सकते हो कि नहीं कर सकते, रैम को इंसर्ट करना। ठीक है, ये हॉट प्लग होता है। तो हॉट प्लग एक फीचर है जिसको आप यूज कर सकते हो। नॉर्मली क्या होता है कि जैसे ब्लेड सर्वर वगैरह होते हैं तो उसमें भी आप जो है रनिंग मशीन में ही रैम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ओके.
तो उसके लिए ठीक होता है है सर। बेसिकली, ये फंक्शन वहां से आया है, मेमोरी हॉट प्लग। ओके। तो इसको आप इनेबल करोगे तो मेमोरी जो है आप चेंज कर पाओगे चलती मशीन में भी। हार्ड ड्राइव कितनी देनी है इसको, तो यहाँ पे मैं इसको दे देता हूँ 10 GB सफिशिएंट होगी। ठीक है, अब ये वही आ गया SCSI कंट्रोलर। देखो बस लॉजिक पैरेलल होता है, देखो बस लॉजिक पैरेलल है, LSI लॉजिक पैरेलल है, और सैस ये सीरियल हो। ये देखो मैंने सीरियल ले ओके। लिया, स्पीड ज्यादा बनेगी। USB कंट्रोलर आप 2.0 3.0 लेटेस्ट भी चूज कर सकते हो। तो उसमें अगर देखो मैंने इसको यूज किया और मेरे उसमें नहीं है, सिस्टम में गैस में नहीं है, तो ये दिखाएगा। ओके। देखो मेरे गैस में 2.0 ही चल रहा है। ओके सर। इसके बाद NIC जो है वो यहाँ पे आप ले सकते हो, इसने डिफॉल्ट ले लिया है। ये देखो पावर ऑन कनेक्टेड, अडेप्टर टाइप यहाँ पे आप चूज करोगे। देखो VMN जितना नंबर ज्यादा होता है उतना ही बेटर माना जाता है। The VMX Net 2, VMNX 3, ये 3 इज बेटर देन 2। ठीक ये है, सब क्या होता है सर, अडॉप्टर्स है क्या? ये अडेप्टर्स के टाइप हैं, ये लीगेसी ओके। अडेप्टर होते हैं। ये लीगेसी अडेप्टर होते हैं जिसके अंदर होते हैं। ओके। E1000 जो है ये लीगेसी आपका सबसे पहले ये चला था आपका लीगेसी वाला। ये 1000 Mbps की स्पीड देता है आपको। ठीक है, ये AMD का है PC नेट। तो अलग अलग टाइप के हैं। ओके सर। ये नया फीचर आया था SR-IOV, ये टीमिंग के लिए यूज होता है, NIC टीमिंग के लिए फीचर होता है। तो NIC वर्चुअलाइजेशन में इसको यूज कर सकते हो। ये विंडोज के ओके। अंदर नया फीचर आया था तो यहाँ पे भी इन्होंने डाल दिया है। तो ये इस टाइप के अडेप्टर जो अलग अलग फीचर यूज कर रहे हैं उनके लिए है। E1000 1000 ले लिया मैंने। ठीक है, मैक एड्रेस जो आपको यहाँ डालना है वो आप डाल सकते हो। इसका ऑटोमेटिक करोगे तो अपने आप क्रिएट हो जाएगा, मैनुअली आप डाल सकते हो कुछ भी यहाँ। ओके सर। ठीक है, तो ऑटोमेटिक रहने देते हैं। ये आपकी सेटिंग होगी सर इसकी। आप एडाप्टर E11 कौन सा? E100 वही लिया ना सर, लेगेसी का हाँ ही लिया ना आपने हाँ हाँ, नेटवर्क वही लिया, एडाप्टर? वही लिया, वही लिया, यू सेड E1000 लिया। VM3 इज द बेस्ट। हम्म, आप ये भी ले सकते हो, नो प्रॉब्लम। ओके। CD DVD। अब यहाँ पे देखो डेटा स्टोर से ही मैं XP कहाँ डला है, डेटा स्टोर में, हाँ सर। इसके अंदर डला है ना मेरे पास। ये देखो यहाँ से उठा लूंगा मैं इसको। ओके सर। और वीडियो सेटिंग यहाँ पे डिफॉल्ट आप रख सकते हो, नहीं तो 3D आप यूज कर सकते हो। 3D अगर आप लेना चाहते हो तो कस्टम में जा सकते हो, और मेमोरी आप कितनी वीडियो में शेयर कराना चाहते हो यहाँ डाल सकते हो। ओके। ठीक है, अभी XP जो है वो पुरानी विंडोज है आपकी, वो 3D सपोर्ट नहीं करेगा आपका। ठीक है, तो यहाँ पे मैं डिफॉल्ट ही रहने दूंगा इसको। ओके सर। ये सेटिंग हो गई आपकी। नेक्स्ट करेंगे, ये अब रेडी टू यहाँ पे यूज हो जाएगी। अब यहाँ पे इसको बस फिनिश करना होगा। ये देखो ये आ गया, इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे जो है पावर ऑन का बटन है। ठीक है सर। ये देखो इसका कंसोल लेना है, यहाँ पे क्लिक करोगे। ये देखो अब ये आपका जो OS है वो इसके अंदर डलने वाला है। ये देखो
ये देखो, ये पार्टीशन बना लो यहाँ पे आप, इसको एंटीफेस फॉर्मेटेड करेंगे क्विक। ओके। ये एक्सपी डल रहा है इसके अंदर। एक्सपी मैंने इसलिए चूज किया है क्योंकि लाइट वेट है हाँ सर। और जल्दी डल जाएगा ये इसके अंदर। ये डल रहा है, आप इसे यहाँ से बंद भी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। तो बैकग्राउंड में चलता रहेगा ये, ओके सर। ठीक है ना। तो तब तक आप कुछ और भी काम कर सकते हो। ये देखो, ये इसका पूरा ग्राफ दिखाएगा कि इसमें क्या क्या चल रहा है, क्या कंजम्पशन हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। ये यहाँ पे दिख रहा है सारी चीजें। इसकी जो सेटिंग्स हमने डाली थी वो ये दिखा रहा है, यस सर। ठीक है। VMware टूल्स अभी डले नहीं है इसके अंदर। यहाँ आप जो है इसको लिख सकते हो इसके बारे में। ओके। तो यहाँ पे आप इस तरह से कमेंट डाल सकते हो, जिससे कि आपको याद रहे कि ये मशीन हमने क्यों बनाई है, किस चीज के लिए हमने बनाई है। मैंने ठीक यहाँ है लिख सर। दिया कि टेस्टिंग पर्पस के लिए आईटी डिपार्टमेंट यूज कर रहा है इसको। तो इस तरह से आप कमेंट डाल के इसको यूज कर सकते हो, ठीक है। VMware जब ये मशीन स्टार्ट होगी तो ऑटो स्टार्ट इसमें डल जाएगा, ये आपने इनेबल करा दिया। ये देखो, अब जब ये मशीन रेडी होगी ना तो ऑटोमेटिक इसके भी अंदर VMware टूल डल जाएंगे, नहीं तो हमें मैनुअली डालना होता, ठीक है। तो ये आपको देखो, ये आप लीजिए, ठीक है। ऑटो स्टार्ट में आपने ये डाल दिया है, ठीक है। ऑटो स्टार्ट में ये हाँ, ड्राइवर्स टूल्स इंस्टॉल होना बोल के आपने टूल्स ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो किया है सर। जाएंगे। हाँ, ओके। बाकी सारे और भी फीचर है, अभी ये एक बार डल जाए तो और भी बता दूंगा इसके बारे में। ये देखो, इसकी कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे स्टोर है, XPSP2 VMX फाइल बनती है इसकी। अभी आगे बताऊंगा एक्सटेंशंस कौन कौन से यूज होते हैं किस किस चीज के। तो कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है VMX फॉर्म में, इसका फॉर्मेट ओके। डेटा स्टोर के अंदर है, ये लोकेशन इसकी, ठीक है। तो ये इसकी जनरल ऑप्शन में आ रहा है। VMware टूल्स में आपको ये दिखाएगा कि अभी ये शट डाउन है, पावर ऑन है, तो ये इनेबल हो जाएंगे आपके, ठीक है। सस्पेंड कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, ये आप यहाँ पे वेक ऑन लैन वाला भी कर सकते हो आप, ठीक है। ओके। बूट ऑप्शन में आप चूज कर सकते हैं, आप बूट डिले डाल सकते हो, ये सारी चीजें होती है। फोर्स बायोस सेटअप्स, जब मशीन स्टार्ट हो तो बायोस में चली जाए, इस पर टिक कर जाओगे आप। इसमें या firmware बायोस नहीं है जैसा अब जैसे firmware है इसकी सर। बायोस में जाना है तो बायोस में जाने के लिए आपको प्रॉब्लम होती है ना, तो वहाँ यहाँ टिक कर दो बस, ये ऑटोमेटिक चली जाएगी। नेक्स्ट टाइम ये अपने आप हट जाएगा, चेक चेक मार्क, जब अंदर चले जाओगे आप। ओके सर। ये बूट रिकवरी के लिए होता है, रिकवरी मोड में घुस जाए अपने आप, ठीक है। ये उसके लिए, ये ट्रबल शूटिंग के लिए चीजें।
boot Okay, sir. options. एडवांस सेटिंग्स कॉन्फ़िगरेशन पैरामीटर, ये स्वैप फाइल की लोकेशन के लिए होता है। अभी बताएंगे आपको आगे स्वैप फाइल क्या होती है। वर्चुअल मेमोरी जो होती है उसकी फाइल होती है फाइल। तो आप किस तरह से इसको यूज करना चाहते हो वो आप यहाँ पे बता सकते हो। ठीक है, ये देख रहे हो यहाँ पे कंज्यूम कर रही है Yes, sir. सीपीयू को, जैसे जैसे Performance डल रही है है। ना, ये देखो सीपीयू हाँ, sir. कंज्यूम कर रही है। तो वैसे वैसे दिखाएगा आपको एक एक चीज, इसमें क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। कभी भी कंसोल से आप देख सकते हो कि इसके अंदर क्या चल रहा है, कितना चल रहा है। देखो ठीक है। ये वही चीज है, अगर इसको ग्राफ मॉनिटरिंग आप कर दो तो ग्राफ दिखाएगा क्या इवेंट चल रहे हैं इसमें, तब से अब तक क्या क्या इवेंट चले हैं तो वो दिखा रहा है आपको। ये देखो सारी चीजें, ये टास्क हमने क्या क्या किया, कब इसको पावर ऑन किया, उसके बाद कब वीएम क्रिएट की, ये सब दिखा रहा है आपको। Okay. ठीक है, लॉग फाइल कहाँ स्टोर होंगे, ये देखो vmware.log फाइल के अंदर, इसी डायरेक्टरी के अंदर होंगे। ये देखो डेटा स्टोर के अंदर। ठीक है, इसमें कोई नोटिफिकेशन आया है कि नहीं आया, देखो ये vmware to not install, या देखो हमने ये सेट कर दिया था ना Yes, sir. आपके लिए, तो ये इन्फो कर रहा है आपको, दिखा रहा है। तो ये इसके इस तरह से आप इसमें कर सकते हो। ठीक है, देखो ये ESXi की जो आप देखना चाहते हो कि भी फीचर क्या क्या फीचर यूज कर रहा है ये इसके लिए होता है। देखो कल आपको दिखाया था ना, Yes, इवेल्युएशन sir. मोड में मोस्ट ऑफ द फीचर आपके इनेबल रहते हैं। तो देखो ये आपके कौन कौन से फीचर यूज कर रहा है, ये देखो बहुत सारे हैं। ये देखो HA भी सपोर्ट कर रहा है, DRS भी सपोर्ट कर रहा है, बहुत सारे फीचर है। देखो ये देखो सारे फीचर आप जो है यहाँ देख सकते हैं। ये देखो फॉल्ट टॉलरेंस FT फीचर, ये देखो सारे फीचर हैं इसमें जो भी लेटेस्ट है। Okay. ठीक है ना, ये सारे इवेल्युएशन में सारे रहते हैं, लेकिन अगर लाइसेंस के हिसाब से फिर अपने भी कुछ फीचर कम हो जाते हैं इसमें। Okay, sir. ठीक है, तो वो लाइसेंसिंग की आपको जो मिलेगी ना, वैसे मार्केट में Yes, sir. आपको कोई प्रोडक्ट अलग से नहीं मिलेगा। सबके लिए ESXi सेम ही होता है, लेकिन जो की नंबर वो Features. भेजते हैं ना वहां से, वो हाँ, की sir. डालते ही इसमें अपने कुछ फीचर जो होते हैं वो इनेबल हो जाते हैं, कुछ हट जाते हैं। Okay. ठीक है ना, तो मतलब CD तो वही रहती है, उसकी इमेज फाइल तो वही रहती है, लेकिन जो सीरियल नंबर है उसके अकॉर्डिंग ये कुछ फीचर इसमें चेंज हो जाते हैं, कुछ इसमें कम हो ठीक है, जाएंगे sir. फीचर इसमें। ठीक है, वो लाइसेंसिंग के हिसाब से वो होता है। यहाँ पे आप जो है लाइसेंस अपना डाल सकते हो, जो Okay. परचेज किया हुआ आपने लाइसेंस है।